So today we are going to start our civics chapter 8, that is confronting marginalization. In this chapter we will study about the confrontation. Means what is the meaning of confronting? Confronting means facing something. मीन्स पहले जैसे होता था SC ST को सब माइनॉरिटी पीपल्स में जज करते थे और उन्हें लोअर कास्ट के जैसे ट्रीट करते थे, अनटचेबिलिटी वॉज देयर. तो अब क्या है, जो SC ST पीपल्स हैं नाउ दे आर कन्फ्रंटिंग देमसेल्व्स. मीन्स वो आगे आके हर एक चीज़ को फेस कर रहे हैं एंड नाउ दे आर मेजॉरिटी पीपल्स आर नॉट एबल टू सप्रेस देम नाउ. अब जो SC ST पीपल्स है और या फिर वी कैन से लोअर कास्ट पीपल है जिन्हें स्टार्टिंग में सप्रेस किया जाता था, जिन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते थे, नाउ दे आर नॉट एबल टू सप्रेस देम. अब वो अपने फंडामेंटल्स राइट के लिए खुद सामने आके उस चीज़ के लिए फाइट करते हैं. ठीक है, तो ये है आपका कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, दैट हाउ मार्जिनलाइज पीपल्स आर कमिंग टू फेस each and everything which is happening against to them in the society, and now they are also using their fundamental rights which constitution is providing them. Okay, so this will about your chapter, that how we will what we will study in this chapter about the confrontation of marginalization. Okay, in this chapter we are having provided by the constitution only, like we are having article 17 is there. Okay, article 17 is abolition of untouchability, that now untouchability is not at all part of society, and now nobody will practice that. If they will practice, then it will be a punishable task for them. Okay, so article 17 is providing abolition of untouchability. Okay, article says that there is no more untouchability in our society. What is untouchability? Do you know what is untouchability? Anybody can answer? Means untouchability means Yes, ma'am. yes, fine, good beta. Tell me what is untouchability fast. Ma'am, when people are discriminated on the basis of their caste, religion, background, their social background, and their traditions, is called the process of This is generally called discrimination. What is untouchability? बच्चे, untouchability means the things which are allowed to for the majority peoples or higher class peoples, lower caste people are not able to touch them, like their food, like their hospitals, schools, and if they are asking anything from lower caste people, then they cannot touch that particular thing. If lower caste people came at the home of the higher class people, then they are not able to sit equal to them. They are not able or they are not allowed to use their utensils for having any food. ठीक है, so this is called untouchability. They cannot touch their any particular thing. अगर मार्केट से भी अगर कोई चीज़ उन्होंने मंगवाई है, so how they will bring it? They will tie it that particular thing with the help of a thread. Then they will hold that thread. They will not hold that particular thing. That was untouchability, and now this practice is completely abolished from the society. Now it is not at all part of our society. Okay, that was untouchability. ओके तो आज की सोसाइटी में ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है कि जो लोअर कास्ट पीपल है वो हायर क्लास पीपल के सेम लेवल पे सिटिंग नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं, या फिर जो उनके खुद के यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें वो अपना कुछ भी फूड है, टी है, कॉफ़ी है, वाटर है, जिसमें वो अपना यूज़ कर रहे हैं, सेम जो यूटेंसिल है जो वो यूज़ करते हैं उसमें वो उन्हें ऑफ़र नहीं कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में होता था कि वो सेम ग्लास में उन्हें ऑफ़र नहीं करते थे, फाइन, बट अभी क्या है, अभी ये सारी चीज़ें क्या है, अबॉलिश हो गई है. नाउ पीपल आर मच एजुकेटेड बच्चे, अब उन्हें धीरे धीरे खुद भी समझ आने लगा है. ओके, बट जो एक हायर क्लास पीपल है जो उन्हें सप्रेस करना चाहते हैं, वो आज भी किसी न किसी तरीके से उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन.
ओके और ये जो चैप्टर है इसमें हम एक स्टोरी की हेल्प से आपको पूरा एक समझाने की कोशिश करेंगे दैट हाउ नाउ दीज पीपल्स आर coming in front to face each and everything, and they are also you can say that they are also knowing about the facts and fundamental rights which constitution has provided to them, that now we are having such rights and we can avail our rights also. Okay, so let's start with the story. जो स्टोरी है आपकी देर वॉज अ विलेज जकमलगूर देर वॉज अ विलेज, और उस विलेज में एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है, जिसमें जो लोकल डाइटी होती थी उसको ऑनर किया जाता था. On page number it is? इट इज़ ऑन, आई डोंट नो एट विच पेज नंबर, आई डोंट हैव योर बुक बच्चे. जो आपका चैप्टर ना जैसे स्टार्ट होता था वहाँ से सेकेंड या थर्ड पेज नंबर निकालिए आप, बिकॉज आई डोंट हैव बुक ना. Ma'am, 98 पे. 98, ओके ओके, Ma'am, 98. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, ठीक है. तो वहाँ पे जो रिचुअल क्या होता था, जो फेस्टिवल होता था वो क्या था आपका, जो भी लोकल डाइटी होती थी उसे ऑनर किया जाता था, और आसपास के नेबरिंग से जो प्रिस्ट वहाँ पे आते थे, वो जो फेस्टिवल था उसमें पार्ट लेने के लिए. अबाउट जो आपके 20 विलेजेस हैं, 20 विलेजेस के सारे प्रिस्ट आते थे वहाँ पे उस फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए. और वहाँ पे क्या किया जाता था, जो वो सेरेमनी होती थी, वो जो फंक्शन होता था वो किस तरीके से स्टार्ट होता था. इट वॉज बिगिन विद वॉशिंग द फीट ऑफ दीज प्रिस्ट. जो प्रिस्ट होते थे वहाँ पे उन सब के फीट को वो वॉश करते थे, और उसके बाद जो दलित पर्सन होते थे, नाउ दे यूज दैट वाटर फॉर बाथिंग, ठीक है. तो उसको वो क्या करते थे, जब वो उनके पैर वॉश करते थे, फीट वॉश करते थे, तो वहाँ के जो दलित पर्सन होते थे वो उस वाटर को यूज़ करते थे अपने खुद की बाथिंग. बहुत टाइम से मतलब यही चीज़ें प्रोसीड होती जाती थी. मिनिमम 5 डेज का ये इवेंट होता था, ठीक है. तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास ऑन होती गई. ग्रैंडफादर इस चीज़ में इन्वॉल्व थे क्योंकि वो SC/ST कास्ट से बिलोंग करते थे. उसके बाद आए ग्रैंडफादर से फादर आए, उन्होंने भी सेम चीज़ प्रैक्टिस करनी शुरू की, बिकॉज उन्हें पता था कि वो भी दलित का पार्ट है और यही रिचुअल फॉलो होते आए हैं. तो अब वो भी उस चीज़ को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे. बट अब बारी आई नेक्स्ट टाइम रत्नाम की. रत्नाम कौन है, जो एट प्रेजेंट जो सन है जिन्हें वो रिचुअल फॉलो करना है, ठीक है. सेम चीज़ उनके साथ भी होनी थी. वो प्रेस के फीट वॉश करेंगे, और जो वाटर होगा उससे वो फिर क्या करेंगे, खुद के बाथिंग के लिए उस वाटर को यूज़ करेंगे. बट रत्नाम रिफ्यूज़ टू फॉलो दिस रिचुअल, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा और एजुकेटेड बंदा था, और उन्होंने इन सब रिचुअल से क्या किया, मना कर दिया, दैट ही विल नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ सच रिचुअल. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मेजॉरिटी होती है, जो हायर क्लास पीपल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है कि इतने सालों से ये रिचुअल फॉलो होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, और आज अगर वो बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड हो गया है तो वो इन सारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है. तो उन्होंने सोचा कि उनसे रिवेंज के लिए सोचा कि इन्होंने इस तरीके से हम लोगों का मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हम इनसे बदला लेंगे, ठीक है. तो वो पहले वहाँ जाते हैं, उन्हें समझाते हैं इस तरीके से कि जो वहाँ की जो डाइटी है वो आपके वो क्या हो जाएंगे, वो आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका बहुत कुछ गलत हो जाएगा. तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि जो दलित पर्सन है आप उन्हें टेम्पल में एंट्री की तो परमिशन देते ही नहीं है, तो अगर हम टेम्पल में एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, सो हाउ डाइटी विल एंग्री विद अस, तो वो हमसे क्यों नाराज़ होंगे, हम तो कभी टेम्पल में जाते ही नहीं है और नहीं थे. तो उस तरीके से तो जो वहाँ के जो डाइटी है उनका भी कोई मतलब राइट नहीं है हमसे नाराज़ होने का. तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्हें आंसर किया. अंचंचल क्रेश बच्चे, ऑन योर वीडियो, काइंडली ऑन योर वीडियो एवरीबडी, ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जब वो नहीं मानते तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं इस तरीके से तो फिर ये नहीं माने, तो वो उससे थोड़ा और बड़ा सोचते हैं. और बड़ा क्या सोचते हैं, वो एक रात वो क्या जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस हट में वो रह रहे होते हैं वहाँ जाके उसको आग लगा देते हैं.
ठीक है, किसी तरीके से वो वहाँ से बच के निकलते हैं और उसके बाद फाइनली वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट केस फाइल करने। ठीक है, तो फाइनली वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो भी इंस्पेक्टर होते हैं वो उनकी जो भी एफआईआर होती है वो वहाँ पे फाइल करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1819। देयर इज अ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, prevention of atrocities, that is basically for the SC/ST peoples, 1989 ये एक्ट आया था आपका 1989। एंड व्हेन दे फाइल कंप्लेन अगेंस्ट ऑल दीज रिचुअल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द विलेज, आफ्टर दैट ये जो रिचुअल था उनका वहाँ पे बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। दैट लाइक दिस यू कैन नॉट ट्रीट एनी दलित पर्सन और SC/ST पर्सन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी इस चैप्टर में बताया गया है बेटा कि अब जो SC/ST पर्सन्स हैं आप उन्हें इस तरीके से सप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्हें उन सारी चीज़ों की नॉलेज भी है। स्टार्टिंग में अगर लोग एजुकेटेड नहीं होते थे तो उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता होता था। ओके, बट नाउ पीपल्स आर वेल एजुकेटेड, they are able to understand that what is happening with them। ओके, और वो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, अपने आप को कन्फ्रंट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक यू आर हैविंग आर्टिकल 17, अभी आपको बताया आर्टिकल 17। okay, that is abolition of untouchability। now they know that untouchability is not at all a part of our society, so they can file case against that particular practice if someone is practicing still in our society। Fine, apart from these there are so many articles also। if you want to write down, you can write down in your notebook, be ready with your pencil, you can write down in your this NCERT book only, no need to write down in separate any notebook। okay, article 17 you are having for prohibit of untouchability। okay, after that we will write sequence wise। okay, and these articles are important for your NTSC exam also। okay, in this chapter only articles and these you can say fundamental rights are there for the SC/ST peoples। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आपकी आउट होती हैं या फिर जो भी यू कैन से कि जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है स्कूल या कॉलेजेस में आफ्टर योर 12th, जो भी कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स है तो उसके लिए एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, बट उसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन का थोड़ा वहाँ पे आ जाता है आपका परसेंटेज, जो परसेंटेज ऑफ सीट अलॉटेड होती है फॉर SC/ST, फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर OBC कैटेगरी। ओके, वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है आपका रिजर्वेशन का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट देयर आर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी भी है और अगर उसमें किसी को अप्लाई भी करना है तो वहाँ पे भी सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हायर क्लास पीपल्स हैं सिर्फ वही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस वहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यू नीड टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया। अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। doesn't matter you belong to SC/ST caste or you belongs to any other caste। ठीक है, so this is means equal rights and equal opportunity to all। got it beta? understood? Yes, ma'am। okay, fine। next article लिखिए, article 15। 15(1) there are two articles under 15 only, so first we will write article 15(1) in bracket, you will write down 15. Yes, ma'am। okay, or you can write down 15.1 also, both are same।
डन? ओके, Yes, फाइन ma'am. फाइन फाइन फाइन. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन मीन्स प्रोहिबिट discrimination against any citizen, prohibits discrimination against any citizen on the basis of gender, caste, religion, race, etc. Prohibit discrimination against any citizen on the basis of caste, gender, religion, race, etc. Fine? Yes, ma'am. डन? आई थिंक ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम्प्लीटली क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स. नेक्स्ट हमने बोला था 15.2 हम लिखेंगे. मैम वो 151 है. नो 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 नो, दैट इन आर्टिकल 15.1. 15 को ब्रैकेट 15 के बाद ब्रैकेट में 1 लिखेंगे आप. 151 नहीं है बेटा, वो आर्टिकल 15 है. आर्टिकल 15 का यू कैन से पार्ट 1 है. ओके, करेक्टेड? ओके फाइन, सेजल यू कैन गो. 15.2. Okay. 15.2. yes. Freedom to access to the use of public wells, etc. Freedom to use, directly you can write freedom to use public facility. Freedom to use public facilities. Okay, like अभी हमने डिस्कस किया था ना, दैट SC, ST एंड दलित पर्सन वर नॉट अलाउड टू यूज द सेम हॉस्पिटल, स्कूल, वेल, कॉलेजेस विच. ठीक है, तो ये वाला जो आपका आर्टिकल है, इट प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू दलित पर्सन टू अवेलिंग ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज. नेक्स्ट आर्टिकल 17 आपको लिखवाया, विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी. डन? 17 तो आपने लिख ही दिया होगा. Yes, उसके बाद 19 लिखते हैं. आर्टिकल 19, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द कंट्री. फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द कंट्री. ओके, ये तो था आपके आर्टिकल्स. ठीक है, अभी आपको जब ये स्टोरी आपको पूरी समझाई थी, एक ईयर लिखवाया था 1989. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रोसिटीज? जो भी नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती है अगेंस्ट SC, ST पीपल्स, उन्हें आप बोलते हो एट्रोसिटीज. ओके, सो इनके लिए प्रिवेंशन आपका आया 1989 में, जिसके अगेंस्ट जो SC, ST पर्सन है, अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी, इनमें से कुछ भी प्रैक्टिस किया जाता है बाय हायर क्लास पीपल्स, सो दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. ठीक है, एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989. ओके बच्चे? यस. Yes. Okay. Rest we will discuss in our tomorrow class. Okay, this was all about your today's class. Thank you so much.